ایک دھمکی تھی جو اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا حاذق مغل، اب میں تم سے ایسا انتقام لوں گا کہ تمہاری ساری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ آمین ملک کی دھمکی حاذق کو اپنے کانوں میں کسی ہتھوڑے کی مانند بجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سڑک پر گاڑی چلاتے اسپیڈ سے اپنے سینے کو مسلسل مسل رہا تھا۔ اگر میری بیوی کو ایک خراش بھی آئی تو میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، آمین ملک، حاضر مغل اپنی پوری طاقت سے چلایا تھا۔ اسلام آباد شہر پر رات اتری تھی۔ یہ رات کا کوئی پہر تھا۔ وہ خود کو اس شخص کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بری طرح ناکام ہوئی۔ منع کیا تھا نا میں نے، اس حاذق مغل کو مجھ سے دور رہے، میرے راستے میں نہ آئے، مگر نہیں، اس نے مجھے تباہ کر دیا۔ تو اب میں کیسے اسے چین سے رہنے دوں؟ مجھے اگر پتہ ہوتا کہ حاذق مغل کی بیوی اتنی حسین ہے تو میں بہت پہلے ہی تمہیں اس سے چھین کر اسے تڑپا تڑپا کر مارتا۔ آمین ملک نے نشے میں غرق اس معصوم 20 سالہ زرین کے بالوں کو گدی سے دبوچے چلایا۔ اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ زرین کی غزالی آنکھوں میں خوف ہراس تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی خود کو اس مضبوط شخص کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے گھسیٹتے ہوئے ٹیبل تک لایا۔ زرین کو اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک اسے اپنے گلے میں کچھ گھستا ہوا محسوس ہوا۔ وہ باریک سوئی اس کے گلے میں داخل ہونے لگی، اسے سسکنے پر مجبور کر گئی۔ وہ ایسا تڑپی جیسے مرنے سے پہلے انسان اپنی زندگی کو بچانے کی خاطر ہاتھ پاؤں مارتے تھے تڑپتا ہے۔ وہ بے بس ہوئی تھی۔ حاذق اس شفاق اور بے رحم شخص کی عرفت سے خود کو آزاد کرواتے اس نے اپنے محبوب شوہر، اپنے محافظ کو پکارا۔ اس کے حاذق کو پکارنا آمین کو مزید غصہ دلا گیا۔ آمین کا وزنی ہاتھ اٹھا اور ایک زناٹے دار تھپڑ کا نشان اس معصوم چہرے پر چھوڑ گیا۔ تھپڑ اس قدر زوردار تھا کہ اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا۔ اس کا وجود وہیں کہیں ساکت ہوتا اس شخص کے بازوؤں میں جھول گیا۔ اس نے زرین کو بیڈ پر دھکا دیا۔ اس سے پہلے وہ زرین کے قریب ہوتا یا اس پر جھکتا، دروازہ ایک دہاڑ کے ساتھ کھلا اور حاذق اندھا دھند اندر داخل ہوا۔ اسے ڈھونڈ چکا تھا۔ آمین ملک اسے اپنے نئے خریدے فارم ہاؤس میں لے کر آیا تھا۔ زرین کے جسم میں انجیکٹ ہوا وہ انجیکشن اپنا اثر دکھا رہا تھا۔ حاذق بھاگتا ہوا بیڈ تک آیا اور آمین ملک کو بالوں سے پکڑ کر سیدھا دیوار میں دے مارا۔ اس نے اتنی زور سے اسے دیوار میں مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ حاذق پاگلوں کی طرح اسے بار بار دیوار میں مار رہا تھا جسے اس کے دماغ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ منع کیا تھا نا میں نے، میری بیوی سے دور رہنا، مگر نہیں، تمہیں سمجھ نہیں آئی تھی۔ پہلے تو میں نے تمہیں تباہ نہیں کیا تھا، مگر اب میں تمہیں تباہ کر دوں گا آمین ملک۔ حاذق مغل اپنی پوری قوت سے چلایا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی اور آمین کا سارا نشہ ایک ہی پل میں ہوا ہوا تھا۔ وہ بار بار آمین کا سر دیوار میں مار رہا تھا۔ اس کا سر پھٹا، خون نکلتا، اس کا سارا چہرہ سرخ کر گیا۔ وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہا۔ ہم دونوں کے درمیان دشمنی تھی نا، تم مجھ سے دشمنی کرتے، میری بیوی کو درمیان میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تم نے اپنی حرکت کے بعد میرے اندر کے شیطان کو جگا دیا ہے۔ اب تمہیں میرے قہر سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس کے سر کے بال مٹھیوں میں دبوچے ہوئے اس کا چہرہ پکڑے چلایا تھا، مگر آمین کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا اور وہ گہرے سناٹے میں جا پہنچا۔ حاذق نے اسے وہیں چھوڑا اور زرین کا خیال آیا۔ وہ جلدی سے بیڈ کی جانب پڑا۔ اس کا بے ہوش وجود دیکھتے حاذق کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ اس کے چہرے پر واضح تھپڑوں کے نشان تھے اور اس کے گلے میں۔ حاذق کی آنکھیں دہشت سے لال انگارہ ہو گئی۔ اس شخص نے اس کی بیوی کو اتنی تکلیف دی، وہ اسے چھوڑے گا نہیں۔ وہ آمین ملک تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر چکا تھا۔ زرین کا ایک بازو بھی پھٹا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے قریب پہنچا، اسے اپنے بازو کے حصار میں لے چکا تھا۔ زرین، میری جان آنکھیں کھولو۔ زرین، کیا ہوا ہے؟ حاذق مغل دیوانوں کی طرح اس پر جھکا اس کا گال تھپتھپا رہا تھا، مگر زرین کے وجود میں حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے وہ ہوش میں آیا، اسے اپنے باہوں میں پڑا اور کمرے سے باہر کی جانب بھاگا۔ حاذق مغل اس شہر کا جانا مانا اور بہت بڑا بزنس مین تھا۔ بہت چھوٹی عمر میں اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے بہت خطرناک حادثہ دیکھا تھا۔ وہ محض 10 سال کا تھا جب اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پورے کے پورے خاندان کو ختم ہوتے دیکھا تھا۔ وہ لوگ ایک اندیکھی دشمنی کی بھینٹ چڑھے ہوئے تھے۔ اس کا باپ ایک پولیس والا تھا۔ اس کے باپ نے شہر کے چند رئیسہ کے خلاف کچھ ثبوت اکٹھے کیے تھے اور ان لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے حاذق مغل کے سارے خاندان کو تباہ کر دیا۔ زرین اس کے چاچو کی بیٹی تھی۔ تب زرین محض 5 سال کی تھی۔
وہ زرین کو لے کر وہاں سے بہت مشکل سے بھاگا تھا۔ سالوں گزر گئے، اسے زرین کو کس طرح اس بیریوں سے بڑی دنیا سے محفوظ رکھا صرف میں ہی جانتا تھا۔ وہ تو 10 سال کا بچہ تھا اور وہ 5 سال کی ایک چھوٹی سی معصوم سی بچی۔ لوگوں کی گاڑیاں صاف کرنے سے لے کر اس نے سڑک پر سامان تک بیچا تھا، مگر ایک پل کے لیے بھی اس نے زرین کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے دور نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ اس کے لیے اپنے والدین، اپنے چاچا چاچی کی امانت تھی۔ محض 17 سال کا تھا جب اس نے پہلی بار 4 لوگوں کے قتل کیے تھے۔ ان 4 لوگوں نے اس کے والدین اور چاچا چاچی کو مروایا تھا، اور حاذق مغل نے ان لوگوں کو اس قدر بے دردی سے مارا تھا کہ مہینوں تک ان لوگوں کی نیوز ہیڈ لائنز پڑھ رہی تھی، مگر آج تک کوئی بھی اسے نہ پکڑ پایا، کیونکہ اپنے والدین کا قتل ہوتے دیکھ اس کے اندر کی انسانیت مر گئی تھی۔ پھر اس دن کے بعد وہ بس نہیں ہوا۔ اس کے بعد اس شہر کا خطرناک مافیا لیڈر بن گیا اور انڈر ورلڈ کا بے تاج بادشاہ تھا۔ لوگ اسے سائیکو ڈیول کے نام سے بھی جانتے تھے، مگر بظاہر وہ ایک بزنس مین تھا۔ مگر اس کی خطرناک سائیڈ اس نے آج تک زرین سے بھی چھپا رکھی تھی۔ 2 سال پہلے جیسے ہی زرین 18 سال کی ہوئی، اس نے زرین سے نکاح کر لیا تھا۔ وہ تو اس کے ہاتھوں پلی بڑی تھی، وہ تو شروع سے اس سے محبت کرتی تھی، مگر بچپن میں ہوئے اس حادثے نے زرین کو بہت خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ ہمیشہ سہمی رہتی، اس لیے 2 سال سے اپنے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی کبھی حاذق نے اپنی حد پار نہیں کی تھی۔ اس کا مقصد زرین کو محفوظ حصار دینا تھا، نہ کہ اسے مزید خوفزدہ کرنا۔ اس لیے اس نے کبھی اسے اپنی بیوی نہیں سمجھا اور نہ ہی دیکھا۔ وہ اسے محبت بہت کرتا تھا، مگر اسے بالکل ایک بچی کی طرح ہی ٹریٹ کرتا تھا۔ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا تو حاذق ملک کی جان پر بناتی۔ کچھ مہینے پہلے اس کی آمن ملک سے ٹکر ہوئی تھی۔ وہ ایک لڑکی کے پیچھے تھا جو ٹین ایج لڑکوں کی عزت کے ساتھ کھیلتی تھی، انہیں کڈنیپ کر کے انہیں کوٹے پر بیچ دیتی تھی، اور حاذق مغل کا مقصد اس لڑکی کو جان سے مار کر گندگی کو ختم کرنا تھا۔ مگر آمن ملک اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ حاذق مغل نے اپنا کام کر دیا اور اس دن کے بعد سے وہ دونوں جانی دشمن بن گئے۔ آمن ملک کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ لڑکی کیا کرتی تھی، بس اسے اس لڑکی سے محبت تھی، اور اس لڑکی کو حاذق مغل نے مارا تھا۔ پھر کچھ ہفتوں بعد حادثائی طور پر حاذق مغل نے اسے بزنس میں بھی مات دے دی، جس سے آمن ملک کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ اس دن ہی اس نے حاذق ملک سے یہ وعدہ کیا کہ اسے تباہ کر دے گا، مگر حاذق یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ان سب میں زرین کو بھی لے آئے گا۔ اس نے زرین کو بالکل ایک نارمل لائف دی تھی۔ اس کا گھر بھی بہت چھوٹا تھا۔ اس نے ایک رہائشی طبقے میں ایک سادہ سا فلیٹ لیا تھا۔ فلیٹ بہت خوبصورت تھا۔ وہ زرین کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اسے بنگلوں میں لے کر کبھی نہیں گیا۔ وہ گروسری کے نکلے پاس مارکیٹ میں گئی جب عامر ملک نے اسے وہاں سے کڈنیپ کر لیا۔ اس نے زرین کی پرورش بالکل عام لڑکیوں کی طرح ہی کی تھی۔ اسے کبھی اس احساس میں نہیں رہنے دیا کہ اس کا شوہر کوئی خاص آدمی ہے، تاکہ وہ کسی قسم کے کمپلیکس کا شکار نہ ہو اور گھبرائے نہ، ورنہ وہ زرین کی حفاظت کے لیے گارڈز کی لائنز لگا سکتا تھا۔ مگر اب حاذق مغل کے وجود میں کسی نے چنگاریاں بھڑکا دی تھی۔ وہ لڑکی اس کی آدھی کائنات تھی۔ وہ کہاں اس کی تکلیف برداشت کر سکتا تھا؟ اسے لگ رہا تھا کہ اگر سے کچھ ہوا تو وہ خود مر جائے گا۔ وہ زرین کو ہسپتال لے کر آیا تھا۔ اب لیڈی ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہی تھی، اور وہ کمرے کے باہر کھڑا ونڈو سے اندر دیکھ رہا تھا۔ اندر وہ بے ہوش پڑی مشینوں میں جگڑی ہوئی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ میں ڈرپ لگا رکھی تھی۔ ڈاکٹر اور نرس پاس کھڑی چیک اپ کر رہی تھی، اور وہ باہر اضطرابی کیفیت میں پریشان کھڑا تھا۔ اسے 4 گھنٹے ہو گئے تھے ایک ہی جگہ سٹک کھڑے، مگر اس کی نظریں زرین سے ایک پل کے لیے بھی ہٹنے سے انکاری تھی۔ اس نے کافی دیر کے بعد ڈاکٹر کو کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس کی نظریں دروازے کی طرف اٹھی۔ اب ڈاکٹر اس کی طرف ہی آ رہی تھی۔ ڈاکٹر، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی آواز بھی بہت زیادہ خوف تھا۔ ڈاکٹر اسے اپنی کیبن میں آنے کا کہتی ہوئی چلی گئی۔ حاذق نے بہت مشکل سے اپنے قدموں کو حرکت دی اور ڈاکٹر کے کیبن میں گیا۔ ڈاکٹر اسے بیٹھنے کا اشارہ کر رہی تھی اور وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر کے تاثرات کافی سنجیدہ تھے۔ انہیں فزیکلی زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی، مگر مینٹلی ان کی حالت بہت خراب ہے۔ ہم نے ان کا بلڈ ٹیسٹ کیا ہے۔ 3 سے 4 ہائی ڈوز ڈرگس کو مکس کر کے ایک خطرناک ڈرگ بنا کر ان کی باڈی میں انجیکٹ کی گئی ہے، جن سے ان کی مینٹلی حالت بہت خراب ہو گئی ہے۔ حاذق کو آسمان اپنے سر پر پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے سانس لینے بھی تکلیف ہونے لگی تھی۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ خوفناک نگاہوں سے اب ڈاکٹر کی طرف دیکھ رہا تھا۔
ہوش میں آنے کے بعد ہو سکتا ہے وہ خوف زدہ رہیں، وہ چیخ چلا بھی سکتی ہیں اور اپنی قریبی لوگوں کو پہچاننے سے انکار بھی کر سکتی ہیں۔ اس ڈرگ نے ان کے مائنڈ کے سارے خوف 10 گنا بڑھا دی ہیں۔ بچپن سے لے کر اب تک ان کے مائنڈ میں جتنے بھی خوف تھے وہ سارے اب ان کے سامنے آئیں گے۔ ان کو ٹھیک ہونے میں 7 دن بھی لگ سکتے ہیں اور 2 مہینے بھی۔ یہ ان کی مینٹلی حالت پر بیس کرتا ہے کہ وہ کتنی جلدی ریکور کرتی ہیں۔ ان کا مائنڈ اس وقت بہت بڑے ٹراما کا شکار ہے۔ ان کی بہت کیئر کرنی پڑے گی آپ کو، ان کو اس ٹراما سے واپس نارمل لائف میں لانے کے لیے، اور وہ ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک کب تک ہوں گی یہ نہیں بتایا جا سکتا۔ حاذق کا جسم ساکت ہو گیا تھا، اسے لگا وہ ہل نہیں پائے گا۔ اس کا دل کرچی کرچی ہو گیا تھا، وہ اتنی تکلیف میں تھی صرف حاذق کی وجہ سے۔ اس کی وجہ سے آج زرین سزا کاٹ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھی، وہ اپنی آنکھوں کو ضبط کیے ان کی نمی کو قابو پانے کی کوشش میں تھا۔ وہ شکستہ قدموں کے ساتھ ڈاکٹر کے کیبن سے نکل آیا۔ وہ ساری رات اس کے پاس بیٹھا رہا اور وہ ساری رات دوائیوں کے زیر اثر بے ہوش رہی۔ اگلے دن شروع ہو گیا تھا۔ حاذق 1 منٹ کے لیے بھی سو نہ سکا، اس کی آنکھیں لال انگارہ ہوئی پڑی تھی۔ وہیں اس کے بیڈ کے پاس وہ بیٹھا رہا، نظریں اس کے چہرے پر جمائے، کانوں میں اس کی ہنستی گونجتی ہوئی آوازیں گونج رہی تھی۔ زرین مغل نام ہے میرا، امیجینیشن میں بھی شکوے دیکھے۔ حاذق یہ کبٹ کھولے نا، یہ مجھ سے کھل نہیں رہی، بہت برے ہیں آپ، میں کون سا چھوٹی بچی ہوں۔ ہر طرف سے بس اس کی خوبصورت آوازیں گونج رہی تھی، مگر سامنے سوئی لڑکی کہیں سے بھی اس کی زرین نہیں لگتی تھی۔ اس کی ہنسی کہیں غائب ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں جو ہر وقت حاذق مغل کو دیکھ کر چمکتی تھی، اب ان میں شناسائی کی کوئی رمق بچی نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر زردیاں گھل گئی تھی، مگر اسے واپس زندگی کی طرف لائے گا، اسے ریکور اور ہیل کروائے گا، اس کی طاقت بنے گا، اس کا بہت خیال رکھے گا۔ حاذق دل ہی دل میں خود سے عہد کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد زرین کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی، وہ اپنے ہاتھ ہلا رہی تھی، وہ نیند میں عجیب کیفیت کا شکار ہو رہی تھی۔ بابا کہاں ہیں آپ؟ بابا واپس آ جائیں، مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ وہ نیند میں مسلسل یہی سب بڑبڑا رہی تھی۔ زرین آنکھیں کھولو، ہوش میں آؤ۔ حاذق مغل اس کے چہرے پر جھکا اس کا گال تھپتھپا رہا تھا، وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ حاذق مغل نے اسے پکڑ کر جھنجھوڑا تو فوراً آنکھیں کھول گئی۔ اس کی آنکھیں سیدھا حاذق کی آنکھوں سے ٹکرائی، وہ ویران آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں آنسو سے بھر آئی۔ اس نے میرے بابا کو مار دیا، بابا چلے گئے مجھے چھوڑ کر، یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی۔ زرین دیکھو میں ہوں نا یہاں، تمہارا حاذق ہے نا۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حاذق نے اسے پکڑ کر اپنے حصار میں لیا اور نرمی سے اپنے سینے میں لگا لیا۔ اس نے کسی بھی قسم کی کوئی حرکت نہ کی تھی۔ کافی دیر بعد وہ بولی، مجھے ڈر لگا ہے، یہاں نہیں رہنا، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ اس بار اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ ٹھیک ہے ہم گھر چلتے ہیں۔ گھر؟ وہ پیچھے ہو کر حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں گھر، ہمارا گھر، ہم اپنے گھر جائیں گے۔ حاذق نے دیکھا اس کی آنکھوں میں کسی بھی قسم کی کوئی شناسائی کی رمق تک نہیں تھی، مگر یہ بات سن کر اس کے لہجے میں ہلکی سی خوشی آئی تھی۔ کیا میں اپنے حاذق کے پاس جاؤں گی؟ وہاں حاذق ہوں گے نا؟ یہ سن کر حاذق مغل کا دل لاکھوں ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا۔ وہ کہنا چاہتا تھا میں ہی تمہارا حاذق ہوں، مگر اس کی حالت کے پیش نظر اپنا سر ہاں میں ہلا دیا۔ اس نے دیکھا جسے وہ پرسکون ہو گئی ہو۔ پھر وہ اسے ڈسچارج کروا کر گھر لے آیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اسے سکون آور انجیکشن دینے چاہیے، مگر حاذق مغل نے منع کر دیا۔ اس طرح تو وہ کبھی بھی اپنے ڈر سے لڑ نہیں سکے گی۔ وہ اس کے ساتھ واپس اپارٹمنٹ میں آ گئی تھی۔ صبح سے شام ہو گئی تھی، وہ کمرے میں بند تھی، نہ اس نے کچھ کھایا تھا اور نہ ہی حاذق سے کوئی بات کر رہی تھی۔ وہ جب اپارٹمنٹ میں آئی اس نے دیکھا کہ سارا اپارٹمنٹ خالی تھا۔ وہ حاذق سے ناراض ہو کر بیٹھ گئی کہ اس نے جھوٹ کیوں بولا، یہاں اس کا حاذق ہوگا، یہاں تو وہ ہے ہی نہیں۔ حاذق کچن میں اس کے لیے سینڈوچ بنا رہا تھا کہ شاید وہ یہی کھا لے۔ وہ ہمیشہ سے اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتا آیا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو اپنے باپ کی تصویر سینے سے لگائے خالی خالی نگاہوں سے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ اس وقت وہ پیچ کلر کی شرٹ پہنے 7 وائٹ کلر کے دوپٹے اور ٹراؤزر میں تھی۔ حاذق اس کے پاس بیٹھا۔ پرنسس دیکھو میں تمہاری فیوریٹ سینڈوچ بنا کے لایا ہوں، چلو شاباش کھا لو، پھر میڈیسن بھی کھانی ہے۔ وہ اسے محبت سے پرنسس ہی کہتا تھا، بلکہ اسے پرنسس ٹریٹمنٹ بھی دیتا تھا۔
मगर उसके जिस्म में कोई हरकत ना हुई। उसने हाजिक की तरफ देखना तक गवारा न किया। वो बस तस्वीर को सीने से लगाए हुए बैठी थी। हाजिक के दिल में नए सिरे से दर्द की लहर उठी। ज़रीन। अब हाजिक ने उसका घुटना हिलाया। उसकी नज़रों का इर्तिकाज़ टूटा। उसने हाजिक की तरफ देखा और फिर एक नज़र पलट कर देखा। उसका दिमाग खाली था। ना वो कुछ सोच पा रही थी और ना ही कुछ समझ पा रही थी। उसे कुछ याद भी नहीं आ रहा था। सामने बैठा शख्स कौन था वो ये भी समझने से कासिर थी, मगर वो जो कोई भी था उसके साथ वो महफूज महसूस कर रही थी। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी। इससे ज़्यादा ज़रीन का दिमाग कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। हाजिक ने प्लेट उसके सामने रखी। उसने बिना बहस के खाना शुरू कर दिया। हाजिक ने बेख्तियार सुकून का सांस लिया। थोड़ा सा खाने के बाद प्लेट पड़े कर दी। हाजिक ने उसे पानी का गिलास दिया और मेडिसिन पकड़ाई। उसका जहन इतना खाली था कि उसने बगैर बहस के किसी भी रोबोट की तरह वो पकड़ी और खा ली। इतने में मेन डोर की घंटी बजी। हाजिक बर्तन उठाता कमरे से बाहर निकल गया। बर्तन किचन में रखकर उसने मेन गेट खोला तो सामने मरियम और मिरहा खड़ी थी। उन्हें देख हाजिक थोड़ा हैरान हुआ कि वो उसके घर में क्या कर रही थी। वो दोनों फॉर्मल ड्रेसेस में थी, ना कि यूनिफॉर्म में। वो दोनों इसकी फ़ीमेल गार्ड थी जो कि इसने लड़कियों की हिफाजत के लिए अपने साथ रखी हुई थी। सॉरी सर, अगर आपको हमारा यहाँ आना बुरा लगा। हम दरअसल मैम की तबीयत दरियाफ़त करने आए थे, मरियम रस्मी मुस्कुराहट के साथ बोली। ज़रीन को वहाँ सही सलामत लाते वक्त वो भी उसके साथ ही थी। हाजिक ने बिना कुछ कहे सर हिलाते उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। वो दोनों अंदर दाखिल होगी तो हाजिक ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मिरहा तो सारे अपार्टमेंट का जायज़ा ले रही थी। मरियम ने सवालिया नज़रों से हाजिक की तरफ देखा तो इन्हें अपने पीछे आने का इशारा करता कमरे में आ गया। वो दोनों आगे पीछे हाजिक के साथ कमरे में दाखिल हुई। ज़रीन वैसे ही बेड से टेक लगाए तस्वीर को सीने से लगाए अब भी छत से कुछ ढूंढ रही थी। मरियम बेड पर आकर उसके बिल्कुल पास आकर बैठ गई। हाजिक सोफे पर जाकर बैठ गया और मिरहा भी मरियम के साथ बेड पर टिक गई। मिरहा गौर से हाजिक की हालत भी देख रही थी। ब्लू जीन्स के ऊपर ग्रे शर्ट जिसके दोनों बाजू कोहनियों तक फोल्ड किए थे। आंखें लाल थी। चेहरे पर तकलीफ के साथ दुख भी घुल गया था। वो गर्दन की सीट में बेड पर बैठी अपनी बीवी को देख रहा था। मिरहा के दिल में बेख्तियार ये बात आई कि क्या इस शख्स को इस लड़की के अलावा और कोई नज़र नहीं आता। कमरे की खामोशी को मरियम की आवाज़ ने तोड़ा। हाय ज़रीन, कैसी हो? मगर ज़रीन वैसे ही बैठी रही। हाजिक ने साफ मना किया था कि ज़रीन को मैडम कहकर उसे किसी टेंशन में नहीं डालना, इसलिए वो इसके साथ फ्रेंडली ही बात कर रही थी। अब तबीयत कैसी है? ज़रीन ने उसकी तरफ देखा और हाँ में सर हिला दिया। बोली वो अब भी कुछ नहीं थी। इससे पहले कि वो कोई और बात करती उसका मोबाइल बजा और वो एक्सक्यूज़ करती कमरे से बाहर चले गई। मिरहा ज़रीन के कुछ नज़दीक आकर बैठी। उसकी नज़र सबसे पहले ज़रीन की झोली में किसी तस्वीर पर पड़ी। वो बहुत ही हैंडसम और डैशिंग नौजवान था। उसकी आंखें बिल्कुल ज़रीन की आंखों जैसी थी। ये कौन है? मिरहा के सवाल पर ज़रीन कुछ नहीं बोली, बस सर्द निगाहों से उसे घूरा। उसके बाबा की फ़ोटो है और मेरे चाचू हैं। जवाब हाजिक की तरफ से आया। वो हैरानी से हाजिक की तरफ मुड़ी। इस फ़ोटो में तो काफ़ी यंग है ये। इस वक्त वो कहाँ है? वो हाजिक से सवाल पूछ रही थी। यकीनन वो हाजिक का तकलीफ़ ज़्यादा माजी नहीं जानती थी। 15 साल पहले इनकी डेथ हो चुकी है। हाजिक का जवाब सुनकर मिरहा को तकलीफ़ हुई। ओह, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता ही नहीं था। वो कुछ नहीं बोला। हाजिक ने एक बार फिर भी उसे नहीं देखा था। वो सिर्फ ज़रीन को ही देख रहा था। मिरहा के अंदर नए सिरे से कुछ घायल हुआ। कमरे में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मिरहा की नज़र अब कमरे के चारों तरफ घूम रही थी। अचानक उसने बाएं दीवार की तरफ देखा तो हैरान रह गई। वो सारी दीवार फ़ोटो फ्रेम्स और तस्वीरों से भरी पड़ी थी। वो सहरज़दा सी चलती उस दीवार तक गई। एक साइड पर छोटी सी बच्ची की तस्वीर लगी थी। उसकी गजाली खूबसूरत आंखें थी। मेरा एक सेकंड में ही उसे पहचान गई थी कि ये तस्वीरें बेड पर बैठी हुई उसी लड़की की हैं। उन सब के दरमियान सबसे ज़्यादा प्यारे फ्रेम में तस्वीर लगी हुई थी जिसमें एक 5 साला बच्ची सर पर लाल दुपट्टा लिए बैठी थी और उसके पास 10 साला ग्रीन आंखों वाला बच्चा बैठा था। उस फोटो फ्रेम के कोने में लिखा हुआ था एच लव्स जेड। वो इस तस्वीर को देखकर मबहूत रह गई। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत तस्वीर थी और ये बहुत खूबसूरत है। ये किसकी तस्वीर है? मिरहा चाहकर भी ये सवाल पूछने से खुद को रोक ना पाई। ये हमारी इंगेजमेंट की तस्वीर है।
हाजिक का जवाब सुनकर मिरहा को अपनी सांस सीने में अटकता हुआ महसूस हुआ। ये कैसा इंकशाफ था? वो सालों से किसी और का था। जिस शख्स को उसने दिल दिया था वो पहले से किसी और का हो चुका था। उसे अब अपना सांस लेना मुश्किल हो रहा था। फिर उसकी नज़र दीवार के दूसरे हिस्से पर पड़ी। वहाँ ज़रीन की बहुत सारी तस्वीरें लगी थी और सबके दरमियान में एक बहुत बड़ी तस्वीर जिसमें दोनों ब्लू ड्रेस में एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। ये तस्वीरें बहुत खूबसूरत थी। उसे हाजिक की बीवी पर रश्क आया। वो सच में बहुत खुशनसीब थी। इतने में मरियम अंदर दाखिल हुए। हमें चलना चाहिए, 7 सर की कॉल थी। एक रैकेट को पकड़ने का ऑर्डर आया है। वो दोनों अलविदा कलमात कहती हुई बाहर निकल गई। हाजिक का राइट हैंड साथ था और हाजिक की गैर मौजूदगी में साथ ही उन लोगों को लीड करता था। हाजिक उन दोनों को दरवाजे तक छोड़कर कमरे में वापस आया तो सामने का मंजर देखकर साकित रह गया। ज़मीन अपने दोनों हाथों से मिरहा के लाए फूलों के बुके को तोड़ मरोड़ रही थी और उसकी आंखों में गुस्सा और वहशत थी। वो अपनी सारी वहशत उन फूलों पर निकाल रही थी। फिर उसे अपने पाँव तले ज़ोर से मसलने लगी। हाजिक को लगा कि वो हिल नहीं पाएगा। मिरहा के जाने के बाद ज़रीन को बहुत गुस्सा आया। वो बेड से उठी और मिरहा के लाए हुए फूल जो कि बेड की साइड टेबल पर पड़े थे उन्हें उठाया और अपना सारा गुस्सा उन पर निकाल दिया। उसे सुकून न मिला। फिर उन्हें अपने पैरों तले रोंद दिया। उसका गुस्सा फिर भी कम नहीं हो रहा था। वो नफ़रत से उन फूलों को देख रही थी जो कि तबाह हो चुके थे। हाजिक जो दरवाजे में खड़ा साकित, उसके जिस्म जान में जैसे हरकत पैदा हुई। वो फ़ौरन ज़रीन की जाने पड़ा मगर वो उससे पहले ही ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गई थी। उसने टिशू बॉक्स से कुछ टिशू निकाले और दीवार की तरफ आ गई। उसने अपनी और हाजिक की निकाह की तस्वीर को रगड़ रगड़ कर साफ करना शुरू कर दिया। उसके हाथों में बेताबी थी, आंखों में गुस्सा, वहशत और जुनून था। हाजिक को अब तक यकीन ना आया कि उसने फूलों के साथ इस तरह का सलूक किया। वो तो बहुत ज़्यादा पुरअमन और फूलों से मोहब्बत करने वाली इंसान है। एक बार सिग्नल पर जब गाड़ी रुकी तो एक बच्चा फूलों के गजरे बेच रहा था। हाजिक उसे गजरे लेकर दिए। उसे बहुत खुशी हुई। फिर वो 4 दिन तक वो गजरे कमरे की ड्रेसिंग पर पड़े रहे। जब हाजिक ने उसे फेंकने को बोला तो उसने कहा कि फूल फेंकने से दिल दुखता है और आज वो खुद फूलों को अपने पाँव के नीचे मसल रही थी। बहुत देर बाद हाजिक ने जिस्म को हरकत दी और फ़ौरन ज़रीन की तरफ भागा। वो तस्वीर को रगड़ रगड़ कर साफ कर रही थी जैसे उस पर कोई गंदगी लग गई हो। उसने ज़रीन की दोनों कंधों को पकड़कर पीछे किया। बस कर दो ज़रीन, क्या कर रही हो? वो उसकी गिरफ्त में मचलने लगी। छोड़ो मुझे, वो साफ़ करनी है मुझे। उसने मेरे हाजिक की तस्वीर को अपने गंदे हाथ लगाए हैं। वो गंदी हो गई है। वो मेरे हाजिक को ऐसे नहीं देख सकती। वो सिर्फ मेरा हक है। वो बहुत बुरी है। नफ़रत है मुझे उससे। कोई भी मेरे हाजिक को मुझसे छीन नहीं सकता। हाजिक को लगा कि उसके आसपास धमाके हो रहे हैं। वो स्टिल रह गया। उसे लगा वो हिल नहीं पाएगा। उसे मिरहा की वो नज़रें याद आई। उसके सामने माजी चलने लगा। उसके सामने बार बार मिरहा की आंखें आ रही थी। वो अलग नज़रों से हाजिक को देखती थी और हाजिक ने कभी महसूस तक न किया। और इसकी ज़रीन की 2 मुलाकातों में उस लड़की की आंखों में पढ़ लिया। उसने बेख्तियार ज़रीन को अपने सीने से लगा लिया और वो साकित रह गई। उसकी सारी आवाज़ और मज़ाहमत दम तोड़ गई थी। कुछ देर के बाद ज़रीन ने अपने जिस्म को हरकत दी। उसने पूरी ताकत से हाजिक को धक्का दिया और वो लड़खड़ाया। ज़रीन आंखों में गुस्से की आग लिए उसे देख रही थी। हाजिक ने उसकी आंखों में अपने लिए नफ़रत देखी। उसका दिल जैसे रुक सा गया। उसे लगा वो इन आंखों में इससे ज़्यादा नहीं देख पाएगा। वो 2 कदम पीछे ले गया। खबरदार, अगर आज के बाद मुझे हाथ लगाया मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। हाजिक को लगा कि वो मज़ीद अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह पाएगा। ये उसकी ज़रीन नहीं थी। उससे सहारे के लिए दीवार पर हाथ रखा। उसे सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी। ज़रीन के लहजे में ऐसी काट थी कि हाजिक के दिल की धड़कन चलते चलने पर इनकारी हो गई। उसके काले बाल इस वक्त कमर पर बिखरे हुए थे। वो होश में नहीं थी। उसे बाल संभालने का होश भी नहीं था। उसने कभी एक दिन भी अपने बाल इस तरह खुले नहीं छोड़े थे। उन्हें संवार कर रखती थी। अब तो वो खुद भी बिखर गई थी। वो वापस बेड पर गई और ब्लैंकेट सर तक ताने लेट गई। हाजिक शिकस्ता कदमों से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। उसे सांस तक नहीं आ रही थी। वो अपार्टमेंट लॉक करता हुआ बाहर आ गया। वो गाड़ी में बैठकर बिल्डिंग से ही निकल गया। मगरिब ढल चुकी थी। अब रात शुरू हो रही थी जब वो अपने ऑफिस में आया।
जैसे ही वो वहाँ दाखिल हुआ सब ने उसे देखा, क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं थी। उसने किसी पर भी एक नज़र नहीं डाली और अपने ऑफिस में चला गया। ये उनकी खुफिया बिल्डिंग थी जहाँ बैठकर वो सारे प्लान बनाते थे। वो इस तरह भी कैफियत में चक्कर काटने लगा। उसके दिल में दर्द उठ रही थी, आंखें वहशत ज़दा हो गई। उसने जग से पानी गिलास में अंडेला और एक ही सांस में सारा घटाघट पी गया। उसे सुकून ना आया। उसने एक के बाद दूसरा, तीसरा और फिर चौथा पिया। उसने 36 घंटे पहले खाना खाया था, वो भी ज़रीन के साथ बैठकर, कल सुबह ऑफिस से निकलने से पहले। उसके बाद उसने अब आकर ये पानी पिया था। वो बार बार अपना दिल मसल रहा था। मीरा उसके केबिन के दरवाजे में खड़ी फटते दिल के साथ हाजिक की हालत देख रही थी। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की। उससे पहले ही हाजिक ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। डोंट गेट आउट फ्रॉम हियर। आई डोंट वांट टू सी योर ब्लडी फेस। जस्ट लीव मी अलोन। हाजिक इतने ऊंचे लहजे में चीखा कि उसकी आवाज़ वहाँ के दरो दीवार हिला गई थी। मीरा की हिम्मत ना हो सकी कि अब वो आगे बढ़ती। वो अपने टूटे दिल की कुर्सियों को समेटती वहीं वापस पलट गई। हाजिक के दिलो दिमाग में सिर्फ ज़रीन चल रही थी। वो अपने हाजिक को भूली तो आज भी नहीं थी, बस उसे पहचानने से इनकार कर रही थी। हाजिक के दिल में जो ज़ख्म आज लगे थे शायद अब कभी न भर पाते। इन ज़ख्मों ने उसकी रूह को उसके जिस्म से जैसे जुदा कर दिया था। वो सारी ज़िंदगी कभी इतनी तकलीफ़ में नहीं रहा जितनी तकलीफ़ में वो आज था। वो केबिन से बाहर निकला। अब आंखों में आग थी। वो सीधा उस कमरे में आया जिसमें आमिन मलिक था। सामने कुर्सी पर उसका ज़ख्मी वजूद पड़ा था। उसे देख हाजिक को अपनी ज़रीन की एक एक तकलीफ़ याद आई। आंखों में ज़ख्म भर आए। उसने पानी का जग पकड़ा और सारा उसके मुंह पर फेंक दिया। वो हड़बड़ा कर होश में आया। उसने जैसे ही आंखें खोली, अपने सामने हाजिक को बैठे देख हैरान रह गया। वो ज़ख्मों से चूर था। खुद को हिलाने की कोशिश की मगर बुरी तरह नाकाम ठहरा। मैंने कहा था कि मेरी बीवी को हाथ लगाने की कोशिश मत करना, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने मेरे कहर को दावत दी है। आज तुम्हें दुनिया की कोई ताकत मुझसे बचा नहीं पाएगी। हाजिक ने टेबल से एक खंजर पकड़ा। तुमने कहा था वो मेरी कमज़ोरी है। हाँ, बिल्कुल सच कहा था। वो मेरी वाकई कमज़ोरी है। तुमने मेरी कमज़ोरी को तकलीफ़ देकर ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। मैंने उसे फूलों की तरह संभाल कर रखा था और तुमने इसे पत्तियों की तरह बिखेर दिया। तुम्हारी लाश इस शहर के कुत्तों को भी नहीं मिलेगी। तुम्हें कब्र भी नसीब नहीं होगी। तुम्हें अपने जिस बिज़नेस पर घमंड था वो बिज़नेस तुम्हारी जान नहीं बचा पाएगा। हाजिक उस खंजर को घुमा रहा था। फिर उसने वो खंजर 1 मिनट के अंदर उसके हाथ में 10 से 20 बार घोंपा। उसके हाथ में इतने सुराख हो गए कि गिनना मुश्किल हो गया। फिर उसने दूसरे हाथ के साथ भी वही अमल किया। उसकी चीखें इतनी भयानक थी कि सारा स्टाफ ढल उठा। वो अधमड़ा हो गया। तकलीफ़ हो रही है ना? मैं कल से इसी तकलीफ़ में हूँ। जितने ज़ख्म तुम्हारे दोनों हाथों पर हैं, इससे 10 गुना ज़्यादा मेरे दिल पर लगे हैं। मैंने मना किया था कि नहीं किया था, मगर तुम पास नहीं आए। तुम्हें उस पर ज़रा रहम नहीं आया। उसका इन सब में कोई अमलो दखल नहीं था। तो बिल्कुल इसी तरह मुझे भी तुम पर कोई रहम नहीं आएगा। तुम्हें इस ज़ख्म के बदले ज़ख्म मिलेगा जो तुमने मुझे और मेरी बीवी को दिया। मिर्च पाउडर लाओ। हाजिक हलक के बल चिल्लाया। फ़ौरन एक गार्ड भागता हुआ आया और 2 मिनट के अंदर मिर्च पाउडर उसके हाथ में रख दिया। मरियम को बुलाओ, हाजिक ने हुक्म दिया। गार्ड सर हिलाता हुआ चला गया। हाजिक ने वो मिर्च पाउडर उसके दोनों हाथों के ज़ख्मों पर बढ़कर छिड़क दिया। उसकी दर्दनाक चीखें सब सुन रहे थे, मगर उनको आदत थी। सबको यहाँ बैठकर काम करना था, इसलिए सब ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। वो इतना शोर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। 5 मिनट के अंदर मरियम हाजिर हुई थी। इंजेक्शन तैयार करके लाओ। वो सर हिलाती हुई गई और अगले 5 मिनट बाद उसके हाथ में इंजेक्शन था। हाजिक ने वो इंजेक्शन अपने हाथ में पकड़ा और आमिन मलिक के बाजू में घुसा दिया। ये उस इंजेक्शन से 5 गुना ज़्यादा हाई डोज है जो तुमने मेरी बीवी को दिया था। फिक्र मत करो, इससे तुम्हारा दिमाग अंदर तक पुरसुकून रहेगा। तुम चीख चिल्ला नहीं सकोगे, तुम हिल भी नहीं सकोगे। तुम एक एक पल मौत को करीब से देखोगे, तड़पोगे, मगर तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। हाजिक ने एक एक लफ्ज़ सर्द लहजे में कहा। फिर वो उस कमरे से निकला। वो जैसे ही ऑफिस के अंदरूनी हिस्से में आया, वहाँ मौत जैसा सुनाटा छा गया। वो अपने केबिन में क्या अपनी चाबियाँ उठाई
और 2 मिनट के बाद बाहर निकल गया। उसे वापस घर जाना था। ज़रीन अकेली थी, वो ठीक नहीं थी, उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। मिर्हा को ज़िंदगी में आज पहली बार उस शख्स से खौफ आया था। 2 घंटे बाद वो वापस घर आ गया। कमरे में आने के बाद उसने देखा कि वो अभी तक वैसे ही सर तक कंबल ताने लेटी हुई है, शायद सो गई थी। वो जब भी गुस्से या परेशानी में होती हमेशा ऐसे ही कंबल सर तक ताने सो जाती थी, जैसे सारी दुनिया से छुप जाना चाहती हो। हाजिक ने एक नज़र अपनी हुलिया को देखा। अक्सर जब वो रात को घर आता था तो किसी न किसी मुजरिम को मारने की वजह से उसके अपने कपड़े पर खून के छींटे पड़ जाते थे। वो हमेशा शॉवर लेने के बाद ही ज़रीन को हाथ लगाता था, क्योंकि ये खून गलीज़ लोगों का होता था। इसलिए हाजिक को लगता था कि जब तक वो खून उसके जिस्म और कपड़ों पर लगा है वो खुद भी गलीज़ हो गया है। और ज़रीन की नज़र पड़ने से पहले हमेशा अपने खून आलूदा कपड़े जला देता था। उसने कभी ज़रीन को भनक तक भी पड़ने नहीं दी थी कि वो क्या करता है। अक्सर वो इस वक्त आता था जब वो सो जाती थी। अब भी उससे कपड़े कुछ छीनने पड़े थे। वो सीधा वॉशरूम में घुस गया। शॉवर लेने के बाद वो ब्लैक शर्ट और ग्रे पैंट में बाहर निकला। वो सीधा ज़रीन की साइड पर आया, आराम से उसके चेहरे से कंबल हटाया। बालों की कुछ लटें उसके चेहरे को छुपाए हुए थी। हाजिक उसके पास बैठ गया और नरमी से उसके चेहरे के बाल पीछे किए तो उसने देखा कि उसका सफ़ेद दोधिया चेहरा जर्द हो रहा है। आंखों पर आंसुओं के मीठे मीठे निशान थे, जिन्हें देख हाजिक ने जब्त से अपनी मुठ्ठियाँ भींची। मतलब वो रोते रोते ही सोई थी। हाजिक ने आगे बढ़कर उसकी पेशानी पर अपने सुलगते हुए लब रखे। उसका दिल जो पिछले 36 घंटों से जल रहा था, उसे एक पल भी करार न आया। हाँ, वो इसके ज़ख्मों पर मरहम का काम करती थी। उसे एक नज़र देखने के बाद हाजिक कमरे से निकल गया। उसका रुख किचन की जानिब था। उसने फ्रिज खोली तो सामने प्लेट में वही सैंडविच पड़े थे जो शाम को ज़रीन ने थोड़े से खाए थे। हाजिक के होंठों पर एक ज़ख्मी मुस्कुराहट आई। उसने वो प्लेट निकाली। ऑमलेट गर्म करने के बाद वही सैंडविच वो खा रहा था जो ज़रीन ने छोड़े थे। हाँ, उसके लिए सबसे बेहतरीन खाना था, क्योंकि उसकी बीवी का छोड़ा हुआ था। खाने के साथ उसकी आंखों में नमी उमड़ आई। उसकी आंखों के सामने बार बार ज़रीन की वो अजनबी आंखें आ रही थी। कोई नेज़ा था जो उस वक़्त हाजिक के दिल में पेवस्त हुआ था। जब ज़रीन ने पहली बार उसे नफ़रत से देखा, उसके हाथ रुक गए थे। इससे ज़्यादा वो खा नहीं सकता था। उसने अपना दिल ज़ख्मी होता हुआ महसूस किया था, और ज़ख्म ऐसे थे कि उनकी दवा आंखों के सामने थी, मगर वो चाहकर भी दवा तक नहीं पहुंच सकता था। वो बर्तन समेटता हुआ उठा और वापस कमरे में आ गया। वो बेड पर साइड पर आकर लेटा। उसे तो तब तक नींद नहीं आनी थी जब तक ज़रीन का सर उसके कंधे या सीने पर ना होता। उसे कहाँ आदत रही थी अब उसके बिना सोने की। उसने ज़रीन को अपने करीब करने का सोचा, मगर फिर कुछ घंटों पहले उसका लहजा और अल्फाज याद आए। नहीं, उसकी ज़रीन ने उसे कोई तकलीफ़ नहीं दी थी। इसमें उसका कसूर नहीं था। वो तो सारा उस ड्रग्स का कसूर था जो उसके दिमाग पर हावी हो गई थी। बस कुछ दिनों की बात है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसलिए कुछ दिनों तक उसे ज़रीन के रवैये को दिल पर नहीं लेना। इतना सोचते हाजिर ज़रीन के करीब हुआ, उसका सर उठाकर अपने कंधे पर रखा। दिल में सुकून सा उतरा। उसके लम्ब से खसमसाई थी और से लिपट गई। ज़रीन की इस हरकत पर हाजिक के होंठों पर एक जानदार मुस्कुराहट आई। हाजिक ने उसके सर पर अपने लब रखे और आंखें मूंद गया। वो 48 घंटों से सोया नहीं था, इसलिए उसे नींद की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि उसका सर शदीद दर्द का शिकार था। कुछ ही देर में वो नींद की वादियों में उतर गया। आधी रात का वक्त था। वो जो गहरी नींद में था, उसे अचानक सीने के मुकाम पर अपनी शर्ट सख्त गिरफ्त में महसूस हुई। उसके सीने पर दबाव बढ़ रहा था। फिर से अपने सीने पर नाजुक हाथों का लम्स महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें खोलकर दिमाग को बेदार करना चाहा। दिमाग बेदार होने के बाद उसके कानों में हल्की हल्की आवाज़ पड़ने लगी। नहीं, दूर रहो मुझसे, मेरे करीब मत आना, बचाओ कोई है, हाजिक बचाएं, नहीं दूर रहो, हाजिक। ज़रीन उसके सीने से शर्ट को सख्ती से पकड़े नींद में इस तरह भी कैफियत में आहिस्ता आवाज़ में चीख रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका चेहरा पसीने से शराबूर था। हाजिक का हिसार बेख्तियार उसके गिर्द मजबूत हुआ था। नहीं, मेरे हाजिक ऐसे नहीं हैं, झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ, दूर रहो। वह अब भी चीख रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज़ ऊंची हो रही थी। हाजिक उसे बेड से मुंतकिल करता उठकर थोड़ा सा ऊपर हुआ। ज़रीन, आंखें खोलो, कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी नहीं है यहाँ, कोई तुम्हें तकलीफ़ नहीं दे रहा, देखो तुम्हारा हाजिक तुम्हारे पास है।
हाजिक उसके चेहरे पर झुका उसके गाल थपथपाते हुए कह रहा था। वो यकीनन बहुत खौफनाक ख्वाब देख रही थी, इसलिए उसे आराम से उस ख्वाब से बाहर निकालने की ज़रूरत थी। वो मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी। हाजिक ने अब उसे झिंझोड़ा तो उसने फ़ौरन अपनी आंखें खोल दी। आंखों में खौफ था। हाजिक उसके चेहरे पर झुका नर्म और फिक्रमंद नज़र से उसे ऐसे देख रहा था। वो रोती हुई उठी और हाजिक के सीने से लग गई। हाजिक ने उसे अपने हिसार में ले लिया और उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया। वो मुझे ज़बरदस्ती हाथ लगा रहे थे। उसने गंदे हाथ लगाए। उसने मुझे थप्पड़ मारा। प्लीज़ मुझे बचाएं, मुझे डर लग रहा है। वो रोते हुए हिचकियों के दरमियान बामुश्किल बोल पा रही थी। हाजिक उसकी पीठ सहला रहा था। उसकी आंखें ज़ब्त और गुस्से से लाल हो गई। रिलैक्स, कोई नहीं है यहाँ। मेरे होते हुए तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं हूँ, परेशान ना हो। वो इसी तरह उससे लिपटी और रोए चली जा रही थी और ये तकलीफ़ हाजिक की बर्दाश्त से बाहर थी। हाजिक उससे दूर होकर पानी का गिलास से पकड़ाना चाहा। वो जल्दी मज़ीद खौफज़दा हो गई। नहीं नहीं, प्लीज़ मत छोड़ो। हाजिक वापस पीछे हो गया। रिलैक्स मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए पानी पकड़ रहा था, कहीं नहीं जा रहा। ज़रीन ने हाजिक की शर्ट को मज़ीद मजबूती से पकड़ लिया। नहीं चाहिए। वो मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी। हाजिक ने गहरी सांस ली और सपने हिसार में लेता हुआ लेट गया। अब वो उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता ज़रीन के रोनों में कमी आने लगी। उसके साथ ज़ोर से चिपकी हुई थी, जैसे खौफ दिमाग पर हावी हो गया हो। उसने हाजिक की शर्ट को अभी तक सीने से अपनी मुट्ठी में ज़ोर से दबोच रखा था। कुछ देर तक वो सो गई। उसकी मदम सांसें बता रही थी कि वो सो चुकी है। हाजिक के दिलो दिमाग में इस वक्त शदीद दर्द हो रही थी। वो नहीं जानता था कि जो ज़ख्म उसकी वजह से उसकी बीवी को लगे हैं, उन्हें हील होने में कितना अरसा लगेगा। उसने आंखें बंद करके अपनी आंखों की जलन को कम करने की कोशिश की। वो नाजुक वजूद जो उसके सीने से लगी थी, उसकी वजह से उसे नींद आनी शुरू हो गई और थोड़ी ही देर बाद वो सो गया और एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका था। 10 बजे का वक्त था। वो किचन में नाश्ता बना रहा था और ज़रीन अंदर कमरे में सो रही थी। उसे इस हालत में छोड़कर कहीं भी नहीं जा रहा था। 1 हफ्ता हो चुका था। ज़रीन की हालत वैसी की वैसी ही थी। वो अक्सर दिन में खामोश रहती, ज़्यादा बात न करती, मगर रोज़ रातों को चीखती हुई उठ जाती। उसे खौफ आता था, फिर हाजिक उसे बहुत मुश्किल से हैंडल करता और इस खौफ को कम करने की कोशिश करता। उसका बिहेवियर अब भी वैसा ही था। कभी कभी बहुत अनजान नज़र दिखती थी, कभी नफ़रत से और कभी बेतासुर निगाहों से। उसने इस हफ्ते में एक बार भी हाजिक को उसके नाम से नहीं पुकारा था, जिसकी वजह से हाजिक को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ थी। हाजिक नहीं जानता था कि उसके दिमाग में कुछ पहचान वापस आई है या नहीं, मगर उसके ठीक होने का शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था। उसने 1 हफ्ते में ज़रीन का किसी बच्चे की तरह ख्याल रखा था। खुद उसके बाल अपने हाथों से संवारता, उसे जो कपड़े निकाल कर देता वो पहन लेती। आजकल उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। उस ड्रग ने उसके दिमाग को मफलूज कर दिया था। हाजिक ने उसे 1 हफ्ते में आमिन मलिक को इतनी सज़ा दी थी कि उसके जिस्म के अंग अंग से ज़ख्म लग चुके थे। वो रोज़ रात को 2 घंटे के लिए ऑफिस जाता और अपना सारा गुस्सा और तकलीफ़ उस पर निकालता। आमिन मलिक का जिस्म लहू लुहान हो चुका था। वो तरप तरप कर उससे अपनी मौत मांगता था, मगर हाजिक उससे एक ही बात कहता, जिस दिन उसकी तकलीफ़ कम हो जाएगी उस दिन वो आमिन मलिक की तकलीफ़ भी कम कर देगा। इस 1 हफ्ते में सब ने उसकी शैतानी रूप देख लिए थे। सब उससे दूर रहते। कोई उससे बात करते हुए भी 100 बार सोचता। सब जान गए थे कि जब तक उसकी बीवी बिल्कुल ठीक नहीं होगी, वो भी ठीक नहीं होगा। वो छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता और छोटी छोटी बातों पर डांटता था। वो इन पर अपना गुस्सा निकालता रहता था और मिरात को तो मुखातिब करना ही छोड़ चुका था। वो इसे इस तरह इग्नोर करता जैसे वो दुनिया में हो ही ना। मिरात नहीं जानती थी कि हाजिक के इस सलूक की वजह क्या थी। नाश्ता बनाने के बाद वो वापस कमरे में आया। वो दाईं तरफ करवट लिए सो रही थी। वो नहीं जानता था कि वो जब उठेगी तो इसे पहचानेगी भी या नहीं, या शायद कल रात की तरह वो दोबारा गुस्सा करे। हो सकता है उसे खुद से दूर करें या हाथ लगाने से मना करते, मगर वो उसकी दिमाग की जंग थी जिसमें उसे सिर्फ ज़रीन को फतह याब करके वापस ज़िंदगी की तरफ लाना था। वो बेड पर उसके पास बैठ गया, नरमी से उसके चेहरे से बाल पीछे किए। वो गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। पहले उसे सिर्फ ज़रीन से इश्क था, मगर अब ये चेहरा उसके जीने की वजह बन गया था।
اسے لگتا تھا کہ اگر وہ ایک پل کے لیے بھی اس چہرے کو نہ دیکھے گا تو شاید اگلی سانس بھی نہیں لے پائے گا۔ وہ نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس کے لمس سے وہ کسمسائی۔ حاذق کی نظر بے اختیار اس کی گردن کی طرف اٹھی، جہاں سفید دودیا گلے میں بائیں طرف سرخ دانت کاٹنے کا ہلکا سا نشان تھا اور اب بھی موجود تھا۔ اسے لگا کسی نے اس کے جسم میں آگ کا الاؤ جلا دیا ہو۔ اسے تکلیف ہونے لگی۔ سانس نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ کبھی اتنا بے بس نہیں ہوا تھا جتنا یہ ایک ہفتے میں ہو گیا تھا۔ وہ کیسا شوہر تھا کہ جس کے ہوتے ہوئے اس کی بیوی کو کسی نے تکلیف دی۔ اس سب میں میری غلطی ہے، اس کی اپنی تھی۔ وہ اپنی بیوی کی حفاظت ٹھیک سے نہیں کر پایا تھا۔ وہ حاذق کا ہاتھ بے اختیار گلے کے اس مقام پر گیا، مگر اس سے پہلے حاذق کی انگلی اس کے گلے کو چھوتی اس کا ہاتھ زرین کے ہاتھ میں آ گیا۔ حاذق نے چہرہ اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بیدار ہو چکی تھی۔ حاذق نے ہاتھ پیچھے کرنا چاہا تو اس نے ہاتھ نہ چھوڑا۔ وہ غور سے حاذق کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ حاذق نے دیکھا کہ اس کی بے تاثر آنکھوں میں آہستہ آہستہ جذبات ابھر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ، تکلیف، غم، زخم اور شکوے تھے۔ وہ حاذق کا ہاتھ جھٹکتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ حاذق نے دیکھا جیسے اس کے لہجے میں ناراضگی تھی۔ کیا اسے سب یاد آ گیا تھا؟ کیا وہ ٹھیک ہو گئی تھی؟ حاذق بے چین ہوا تھا۔ زرین، وہ چہرہ نیچے جھکائی بیٹھی تھی۔ حاذق نے پکارا مگر دوسری طرف سے جواب ندارد۔ اس نے دوبارہ پکارنے کے لب کھولے مگر اس سے پہلے اس نے اپنا چہرہ اٹھا کر حاذق کی طرف دیکھا اور اس کا سارا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ حاذق مغل تڑپ اٹھا۔ وہ ناراضگی سے منہ موڑ کر بیٹھ گیا۔ حاذق کو یقین نہ آیا کہ اس سے ناراض ہو رہی تھی، مطلب اسے کچھ نہ کچھ تو یاد آ گیا تھا۔ زرین نے دوبارہ پکارا، کیا زرین لگا رکھی ہے؟ نہیں کرنی مجھے آپ سے بات؟ وہ پھٹ پڑی تھی جیسے غصے سے بری بیٹھی ہوں۔ اور کیوں نہ کرتی بات؟ وجہ بھی تو یہ تھی۔ اسے غور سے اس طرف پھٹتا دیکھ پہلے تو وہ حیران ہوا مگر پھر حاذق کے سینے میں ٹھنڈک پڑی اور چہرہ جھکائے بھیگے لہجے کے ساتھ بولی، کیونکہ میں آپ کی تکلیف دیتی ہوں نا، اس لیے نہیں کرتی بات۔ حاذق کو سمجھ نہ آئی کہ اسے کیا جائے کہے۔ ارے کس نے کہا تم مجھے تکلیف دیتی ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ زرین اپنے حاذق کو کبھی تکلیف نہیں دے سکتی۔ حاذق اب بھی نرمی اور پیار سے اسے بول رہا تھا۔ اب زرین نے چہرہ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بھیگے لہجے میں بولی، مگر میں نے آپ کو دی ہے، میں بہت بری ہوں۔ میں نے آپ کو دھکا دیا اور خود سے دور کیا تھا، اور یہ وقت تھا جب ایک بار پھر حاذق مغل ساکت اور جامد رہ گیا۔ اسے اس زرین کے جواب کی توقع نہیں تھی۔ اسے لگا شاید وہ ہل نہ پائے گا۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پوٹ پوٹ کر رو پڑی۔ کافی دیر بعد حاذق کے ساکت جسم میں حرکت ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر زرین کو اپنے سینے میں بھیج لیا۔ کچھ نہیں ہوا، خاموش ہو جاؤ۔ حاذق کے نرمی سے کہنے پر اس نے خود پر کنٹرول کیا۔ آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دیں، میں بہت بری ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کیا ہوا تھا۔ مجھے کچھ بھی ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا۔ میں تو بس مارکیٹ میں گئی تھی گروسری کرنے۔ اچانک دو لوگ آئے اور مجھے اپنی زبردستی ساتھ لے گئے۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں، سب دھندلا سا ہے، کچھ ہلکا یاد آ رہا ہے بس۔ حاذق کو لگا جیسے وہ سالوں میں آگ میں تپتا وجود ٹھنڈک میں اتر گیا تھا۔ اس نے ایک ہفتہ جو اذیت برداشت کی تھی، آخر کار اس کا پھل اسے مل گیا تھا۔ اسے واپس سے وہ سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ وہ خاموش بیٹھا تھا۔ زرین نے اس کی خاموشی محسوس کی تو اپنا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ حاذق کو لگا جیسے کانوں میں سکون اتر گیا تھا۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے نا؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا۔ مجھے نہیں پتا تھا میں نے ایسا کیوں کیا۔ وہ کچھ نہیں بولا، بس اسے اور مضبوطی سے اپنے حصار میں جگڑ لیا۔ خاموشی سے اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ وہ سو رہی تھی جب اس نے خواب میں خود کو حاذق پر غصہ کرتے دیکھا تھا۔ پھر اسے آہستہ آہستہ کچھ چیزیں یاد آنے لگی۔ وہ کچھ بول نہیں رہا تھا اور اس کی یہ خاموشی زرین کو بے چین کر رہی تھی۔ حاذق، آپ… اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بات کاٹ گیا۔ پلیز دوبارہ میرے نام لو، وہ التجا کر رہا تھا۔ حاذق، زرین کچھ حیران ہوئی۔ بار بار بولو، اب اس نے حکم دیا۔ حاذق، وہ بار بار اس کا نام لینے لگی۔ حاذق کا حصار اور تنگ ہونے لگا۔ اس نے بہت زیادہ زور سے زرین کو گلے لگایا ہوا تھا کہ اب زرین کو سانس لینے میں بھی مشکل ہونے لگی، مگر وہ ایک انچ بھی نہ ہل پائی۔ حاذق، مجھے سانس نہیں آ رہی، وہ بہت مشکل سے بولی تھی، وہ جو پرسکون ہو کر سے محسوس کر رہا تھا۔
होश में आकर थोड़ा सा पीछे हुआ। जरीन ने खुलकर सांस ली। उसने जरीन का चेहरा पीछे किया और अब आंखों में जुनून लिए उसे देख रहा था, मगर वो इससे बेखबर चेहरा झुकाए अपना सांस ठीक कर रही थी। हाजिक ने उसकी पेशानी पर अपने सुलगते हुए लब रख दिए। नौरी जरीन ने आंखें बंद करके उस लम्स को अपने अंदर में उतरता हुआ महसूस किया। वो इसकी अदा पर मुस्कुराया था, फिर उसकी दोनों आंखों पर लम्स छोड़ता, उसके बाद उसके गालों पर। तुमने मुझे वाकई हर्ट किया, मगर मैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपनी तकलीफ़ का मरहम चाहता हूँ। आज हम दोनों की हर तकलीफ़ पर मैं मरहम रख दूँगा। ये कहते हुए हाजिक उसे सोचने समझने का मौका दिए बिना उसके होंठों पर झुक गया। जरीन को अपने जिस्म पर स्पार्क होता हुआ कुछ महसूस हुआ। उसने अपने दोनों हाथों को मुट्ठियों में हाजिक की शर्ट को मजबूती से जकड़ा। हाजिक का जुनून उसके लबों पर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था और उसकी सांसें सीने में ही जैसे अटक रही थी। उसकी हालत देख हाजिक ने उसे अपनी सांसें दी। उसकी हालत गैर होने लगी और उसने ज़ोर से आंखें मीच ली। हाजिक उसकी हालत से तरस खाता हुआ कुछ देर बाद उसे आज़ादी देता हुआ पीछा हुआ। उसका चेहरा लाल हो चुका था, गालों से तपिश निकलने लगी थी। वो वैसे ही उसकी मजबूती से पकड़े अपना सांस दुरुस्त करने लगी। हाजिक ने उसकी नाक से अपनी नाक मिस की, फिर उसकी नाक पर बोसा दिया, उसकी चमकती ठोड़ी पर लब रखे। हाजिक का एक हाथ जरीन के बालों को जड़ों को सहला रहा था, तो दूसरा हाथ उसकी कमर के गिर्द हिसार बनाए हुए था। उसकी नज़र जरीन की गर्दन पर गई और उसका गले पे मौजूद उस निशान पर झुका और नरमी से अपने लब रख दिए और मरहम रख दिया। जरीन ने ज़ोर से आंखें मीच ली। अचानक हाजिक ने उसकी ब्यूटी बॉन पर दांतों से दबाव डाला। जरीन के मुंह से जब्त के बावजूद सिसकी निकली, जो हाजिक के लिए जलती पर तेल का काम कर गई थी। वो वैसे ही उसकी गर्दन पर झुका अपने बेड पर गिरा गया और अपने जुनून की आग में उसको मुंतकिल करने लगा। उसने जरीन का रुख मोड़कर बेड पर गिराया और अब उसकी पूंछ हाजिक की तरफ थी। हाजिक ने उसकी गर्दन से बाल हटाए और उसकी गर्दन पर जा बजा लम्स छोड़ने लगा। जरीन ने बेडशीट को अपनी मुट्ठी में भींचा। हाजिक ने उसके लबों को अपने लबों की कैद में लिया और उसके होंठों से उसकी सांसें खींचकर उन्हें पीने लगा। जरीन की हालत पर रहम खाकर उसके लबों को उसने आज़ादी देते उसके होंठ जरीन के गले और गर्दन की तरफ सफ़र करने लगे। जरीन का गला और गर्दन उसके लम्स से पूर भीग गया था। उसकी बियर्ड की जलन जरीन को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। वो आंखें बंद कर की। कमरे में मायनी खेज खामोशी थी। बस जरीन की अथल पुथल होती सांसों की आवाज़ थी। दो वजूद थे, महरम होने की मलकियत और हक हर चीज़ पर गालिब आने लगा था। उसके वजूद में खोता उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था। जरीन की आंखें बंद हो रही थी। उसे अपना दिमाग ग़नूदगी में जाता हुआ महसूस होने लगा। उसकी आंखें मज़ीद खुलने से इनकारी हो गई थी और फिर वो कब सोई उसे एहसास तक न हुआ। शाम के किसी पहर उसकी आंख खुली। उसने खुद को हाजिक के हिसार में पाया। उसने हाजिक से दूर होने की कोशिश की, जिससे हाजिक की नींद टूटी। वो मूंदी मूंदी आंखें खोले मुस्कुराते हुए जरीन को देख रहा था, फिर उसके माथे को लबों से छुआ। ठीक हो तुम? उसके बालों में उंगलियां चिल्लाते हुए फिक्रमंदी से बोला। जरीन ने करवट बदलते हाजिक की तरफ देखा और अपना चेहरा फेरा। वो संजीदा थी। क्या आप कोई गलत काम करते हैं? उसने धड़कते दिल के साथ पूछा। तुमसे किसने कहा? हाजिक ने बिना डरे बिना घबराए पूछा। वो शख्स जिसने मुझे किडनैप किया था। वो कह रहा था कि आप बहुत बुरे इंसान हैं और लोगों की जान लेते हैं। वो खौफजदा निगाहों से हाजिक को देख रही थी। हाजिक खुलकर मुस्कुराया। उसका हाथ अभी भी जरीन के बालों में चल रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा हाजिक कोई गलत काम कर सकता है, या फिर कोई ऐसा काम जिससे किसी को तकलीफ़ हो? जरीन ने किसी नन्ही बच्ची की तरह नफ़ी में सर हिलाया। मुझे आप पर खुद से ज़्यादा यकीन है। हाजिक की मुस्कुराहट गहरी हुई। तो बस इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखना कि मैं जो भी करता हूँ उसमें सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की भलाई है। उसने जरीन को कान में सरकोशी करते उसके तमाम डर दूर कर दिए। वो जानता था कि आमिन मलिक ने ज़रूर उसके दिमाग में हाजिक के ख़िलाफ़ जहर बढ़ने की कोशिश की होगी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, अपना हुलिया देखते वो शर्म से सुरख पड़ती, चेहरा ही फेर गई थी। हाजिक की ब्लैक शर्ट पे वो इस वक्त खिला हुआ गुलाब लग रही थी। हाजिक से ब्लश होता देख दिल खोल कर मुस्कुराया और एक बार फिर दोनों उसके माथे पर लब रखते हुए उठा और फ्रेश होने की नीयत से वॉशरूम की जाने घुस गया। जरीन उसे अपने वजूद से हाजिक मुल्कल का लम्स
और खुशबू महसूस हो रही थी। खुद को ब्लश होने से रोकने के लिए चेहरा कंबल में छुपा के 2 दिन मज़ीद गुजर गए थे और इस वक्त आमिन मलिक के सामने बैठा था। उसके चेहरे पर आज कितने दिनों बाद पुरसुकून मुस्कुराहट थी और आमिन मलिक ज़ख्मों से चूर बमुश्किल अपनी आंखें खोले उसे देख पा रहा था। वैसे मैं आज हर किस्म की तकलीफ़ से आज़ाद हो गया हूँ, तो अपने वादे के मुताबिक तुम्हें भी तुम्हारी तकलीफ़ से आज़ादी देने आया हूँ। हाजिक ने गन उसके सीने पे रख दी, मगर जैसे वो बदमिज़ा हुआ, फिर सर पर रख दी। बोलो, कहाँ सुराख करूँ, तुम्हारे इस गंदे दिमाग में या इस दिल में? आमिन मलिक पत्थर की बेजान मूरत बना उसे देख रहा था। वो जानता था अब बहुत बहुत नज़दीक है। हाजिक कुछ कंफ्यूज था, फिर उसके होंठों पर एक अचानक पुरस्कार मुस्कुराहट आई और फिर देखते देखते सारे ऑफिस में 2 गोलियों की आवाज़ गूंजी। हाजिक ने उसके दिल और दिमाग दोनों में छेद कर दिया था। एंड नाउ एवरीथिंग इज़ वेल। वो मुस्कुराहट के साथ ज़ेर लब बड़बड़ाता कमरे से बाहर निकल आया। कभी कभी माशरे के जालिम भेड़ियों से बचाने के लिए किसी हाजिक मुगल जैसे शख्स को आना चाहिए, ताकि वो लड़कियों की इज्जत की हिफाजत कर सके। हाजिक मुगल जैसे लोग बचपन से बुरे नहीं होते, पर उन्हें हालात और वक्त बुरा बना देता है। विलन तो बहुत होते हैं, मगर हीरो में विलन बहुत कम होते हैं। सारी सच्चाई जाने बिना ही किसी पर गलत गुमान रखना भी बहुत नुकसान पहुंचा देता है, और बदले के चक्कर में कभी भी किसी लड़की को नहीं लाना चाहिए। ये कहाँ लिखा है कि जुल्म मर्द करे और इसका खमियाजा घर की औरतें भुगते? अब हमें इस मेंटालिटी से बाहर निकल जाना चाहिए।